Let us start a new lesson from the book Beehive. Lesson number 1. The Fun They Had. Book Beehive. Lesson number 1. The Fun They Had, written by Isaac Asimov. First lesson. The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Introduction. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. The lesson says about the situation in future that where there will be no books for reading. Everything will be based on computerized. There will be no books like nowadays. And the books and the schools as we now know them will perhaps not exist. Think about it. There is no school and there is no books. We have to learn everything through this machine. It is all about the things which are going to happen in future. Okay, let us start the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." This is the title of the book. That means headed, titled 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." This is the title of the book, and she wrote about this book in her diary. Margie. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a small boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, full of wrinkles, Julian Chadao, folding wala. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. कंप्यूटर स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में हम देखने वाला जो राइटिंग है वो तो मूव करते रहता है, लेकिन उन लोग पन्ने में जो था, पेज में जो देखा है, इट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. वो जो देखा कागज़ों में वो बिल्कुल स्टिल था, निश्चल था. इट वॉज नॉट मूविंग लाइक द थिंग्स दैट वी सी ऑन द स्क्रीन. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. पहले बार
जिस तरह से उसको पढ़ा था वही शब्द है इसी का अंदर भी. जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट. टॉमी ने बोला, व्हाट ए वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, you are through the book means you have read the book completely with the book, you just throw it away. I guess पूरा पढ़ने के बाद इसको हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा. Our television screens must have had a million books on it and it is good for plenty more. लेकिन टेलीविज़न वाला इस स्क्रीन के अंदर बहुत सारी ऐसे बुक्स तो है नंबर में, मिलियंस. इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये और भी अच्छा होंगे. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इसलिए मैं इसको फेंकूंगा नहीं. सेम विथ माइंड सेड मार्जी, मार्जी ने भी यही बात बताया. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन as many टेक्स्ट बुक्स as टॉमी सेड. मार्जी ने भी बोला मैं भी इसको नहीं फेंकूं. वो 11 ईयर्स की है और जितना टॉमी ने किताबें देखी उतना वो देखी नहीं होगी, बिकॉज ही वॉज 13. टॉमी 13 का है और मार्जी 11 ईयर्स का है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ से मिला है. सेम विथ माइंड सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एनी सीन as many telebooks books meant for TV only. She said, where did you find it? पूछा उसने, तूने कहाँ देखा. In my house, he pointed without looking because he was busy reading. मेरे घर पे. In an attic. Attic means सबसे ऊपर का रूम को कहते हैं एटिक, टॉप मोस्ट रूम. हिंदी में अटारी भी कहते हैं. व्हाट इज इट अबाउट, क्या है इसके अंदर. स्कूल, स्कूल के बारे में. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी वॉज हेटफुल. स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. शी डिड नॉट लाइक स्कूल, शी डिड नॉट वांट टू राइट अबाउट स्कूल्स. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. अब स्कूल का नाम सुनते ही उसको वो बात याद आई. स्कूल वैसे पसंद नहीं करते, अब ये स्कूल के बारे में सुनते ही और चिड़चिड़ी होगी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing words and words until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. उसका जो मैकेनिकल टीचर है, यांत्रिक शिक्षक, जो कंप्यूटर स्क्रीन में है और टेलीविज़न स्क्रीन में है, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी का टेस्ट लेते जा रहे. And she had been doing words and words until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. और परेशान होती रही और आखिरी में उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने भेजा. तब तक ये परेशान होती रही. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर का छोटा सा आदमी है, उसका फेस रेड है और उसके अंदर जो टूल बॉक्स है उसका अंदर डायल्स एंड वायर्स है. डायल्स है ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो गोल आकार में दिखाई देते हैं, जो मैकेनिक वगैरह जो मशीन ठीक करने आता है तो उसी का अंदर एक सुई है और उसका अंदर कई डिजिट्स लिखा हुआ है. इस तरह का एक मशीन है और उसके अलावा बहुत सारे वायर्स है उसके अंदर. He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्जी को देके मुस्कुराने लगा and gave her an apple. उसको एक एप्पल दिया. Then took the teacher apart. फिर उसका जो टेक्निकल टीचर है उसको दूर ले गई. Margie had hoped he would not know how to put it together again.
मार्जी को ऐसा लगा उसको ये जोड़ने नहीं आता होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ as it is सही निकला है. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. The part Margie hated most was the slot on a space where she had to put homework and test papers. जो ऑनलाइन टेस्ट लेता है वो उसका जगह बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. जब वो छोटी थी, 6 साल की थी, तब से लेकर ये पंच कोड में लिखने के लिए उसको सिखाया, इसलिए उसको वो पेज बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. उसमें जो टीचर जो मार्किंग करता है, उसका कॉपी चेक करता है, वो एकदम एक्यूरेट जल्दी जल्दी चेक करके बता भी देते हैं ऑन द स्पॉट. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर का काम पूरा होने के बाद वो मार्जी का हेड में हाथ लगा के थपथपाया. He said it to her mother. It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसकी मम्मी से बोला. मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स. I think the geography sector was geared a little too quick. Geared का मीनिंग दे रखा है adjusted. I think the geography sector was geared a little too quick. Geography section बहुत जल्दी काम करता है. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. बच्ची का जो लेवल है बातों को समझने का बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ये पैटेड मार्जीज हेड अगेन, ये कहकर उसका तारीफ करके फिर से उसका सिर पे हाथ लगा के तपतपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी खुश नहीं थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उन्हें ऐसा लगा कि वो टीचर को यहाँ से पूरी तरह लेके जाने वाले. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार वो टॉमीज के टीचर को लेके गया, इस वजह से हिस्ट्री का पोर्शन पूरा खाली रहा है. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो पूछा स्कूल के बारे में क्यों लिखे. Tommy looked at her with a very superior eyes. Because it is not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसको जवाब दिया, ये जो स्कूल है ना, हमारा जैसा स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. बहुत पुराने समय के जो स्कूल हुआ करता था वही स्कूल है ये. ही आर्डर लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. वो फिर से उसके हाव भाव दिखा के वो बोला, उसको सही तरीक़ा से उच्चारण करके सुनाया. बहुत साल पहले, सेंचुरीज अगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो की जो किताबें हैं. इसलिए मार्जी वॉज हर्ट. इस पर मार्जी को दुख हुआ. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. न जाने वो उस टाइम का स्कूल कैसा कैसा हो. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. वो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद बोलने लगे, चलो कोई बात नहीं,
कम से कम उसका एक टीचर तो है ना. एनीवे दे हैड ए टीचर. टीचर तो थे ना. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. हाँ टीचर तो था लेकिन it was not a regular means normal. It was a man. ये जीवित आदमी थे. ये man. How could a man be a teacher? एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. समझ ले. He just told the boys and girls things and gave them homework. वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे. वो पढ़ाने के बाद उसको होमवर्क देते थे. And asked them questions. इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछते थे उसके बारे में. ये man is not smart enough. ऐसा आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं है. Sure he is. नहीं, बिल्कुल स्मार्ट है. My father knows as much as my teacher. मेरे पिताजी अच्छी तरह जानते हैं ये सब. He knows almost as much. I bet. बच्चा मीन्स बेट. शर्त रखते हैं ना तो उसी को कहते हैं. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्जी बेट रखने का मूड में नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. देखो ऐसा कोई टीचर मेरे घर पे होना मैं पसंद नहीं करती. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे. यू डोंट नो मच मार्जी. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. बावली तू क्या जाने. टीचर्स बच्चों के घर पे थोड़ी आके रहता है. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके अलग बिल्डिंग होता है, बच्चों को उधर जाना पड़ता है. और ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग. सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखता होगा. श्योर इफ दे वेयर द सेम एज. हाँ बराबर एज का है तो सब एक ही चीज़ सीखेंगे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी मम्मी उल्टा बता रही थी. एक एक बच्चे को तो अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. इसका मतलब तो एक जैसा थोड़ी करते हैं ना. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. देखो तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आ रहे, तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो वो किताब नहीं पढ़ सकोगे. आई डोंट से आई डिड नॉट लाइक इट. मार्जी सेड. मैं ये थोड़ी कह रही हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स. वो उस स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहती है, सीखना चाहती है. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. मार्जी स्कूल. लेकिन दोनों का बीच में ये सब बहस चल रहे थे तो उसकी मम्मी ने उसको वार्निंग दिया. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. अभी तक हमारा काम पूरा ही नहीं हुआ. नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू. देखो टॉमी का टाइम भी हो गए, इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहो. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ करके मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ ना. मे बी. ही सेड nonchalantly, unwillingly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. वो किताब अपने tucked beneath his arm, उसके आर्म के नीचे दबा के वो आगे बढ़ा. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. And the mechanical teacher was on and waiting for her. वो स्कूल रूम में चले गया, बेडरूम के पास में था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. मैकेनिकल टीचर वहाँ था, उसके इंतज़ार कर रहे थे. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. इसी टाइम पर, राइट टाइम पर मैकेनिकल टीचर वहाँ उपस्थित रहता है कि सैटरडे संडे को छोड़ के.
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और उसकी मम्मी ने बोला बच्चे समय पर सब कुछ सीख लें तो वो काफ़ी है। एंड द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब वो बताने लगे, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. आज अरिथमेटिक में हम फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। फ्रैक्शन जानते होंगे सब। भिन्न संख्या के बारे में सुना होगा, वो ये फ्रैक्शन, और उसका एडिशन सीखेंगे। एडिशन यानी फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का होमवर्क अपने जगह में डाल दो, लगा दो। इंसर्ट मीन्स लगाना, डालना। कल का होमवर्क पहले डालो, मैं देखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मार्जी डिड सो विथ ए साई। जैसा बताया मार्जी ने उसको अपने जगह में डाल दी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वो वहाँ बैठ करके उसके ग्रैंडफादर ने जिस स्कूल के बारे में बताया था उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। हंसना चिल्लाना शुरू किया। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में बैठकर। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। क्लास ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर पे जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग। सब एक जैसा सीखा। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए एक दूसरे से चर्चा करके कोई डाउट है तो वो क्लियर भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेर पीपल। टीचर्स लोग ही थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में दिखाई दी, चमकने लगी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/2 1/2 एंड 1/4, इस तरह से फ्रैक्शन लिख के वो काम करना शुरू किया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वो सोचने लगी पुराना समय के जो बच्चे हैं वो इस तरह का फ्रैक्शन जोड़ना कैसे पसंद करते। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। किस तरह के मज़े होते हो, तो इसके बारे में वो सोचने लगा। ऐसा एक बेकार लेसन है, कुछ भी नहीं है। आने वाले समय के कोई बात इस तरह से दिखाया। आने वाले दिनों में कोई किताब नहीं होंगे, कोई स्कूल नहीं होंगे, स्कूल नहीं जाना, घर पे बैठ करके अपने जो स्क्रीन में जो भी मतलब सीखना है करना है वो वही खुद ही मशीन जो वो तस्वीरों में दिखाई दिया रोबोटिक टीचर्स, तो वो हमें समझाते रहेंगे और हमें वो सीखना है, काम करना है, सब कुछ इसी के द्वारा होगा। इसे स्कूल जाना, किताब पढ़ना कुछ नहीं होगा। इस तरह के एक बकवास लेसन, तो सीखने के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। पुराना टाइम में जो भी बात होने वाला है उसके बारे में उसने सुना है, उसके बारे में वो डायरी में नोट करके रखा। इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। सो रीड द लेसन। जब स्कूल रीओपन होगा तो दोबारा इसके बारे में तो बता देंगे। तब तक के लिए कुछ टाइम इसको रीड करके समझना है, वर्ड का मीनिंग सीखना है, क्या बताना चाहते हैं ये सीखना है। तो क्वेश्चन आंसर वगैरह वर्कआउट करते समय थोड़ा बहुत और आइडिया मिल जाएगा। बाकी ऐसे कुछ एक खास नहीं है इस लेसन में। ओके, रीड द लेसन।